All right, G. So we were done with, what do you call it? One question from of consumer behavior, and now, Walaikum Assalam, Arisha. Now we are moving on to the next two questions, and today I will be making you people write an answer just like in kindergarten class your teacher did. अच्छा जी, पिछली दफा हमने डिस्कस करिए थे, एनीवन हु स्टिल नॉट श्योर हाउ टू राइट ए 20 मार्कर 20 मार्कर डजंट मैटर, यू डोंट हैव, यू आई मीन हैव टू राइट इट। हाँ जी, 20 मार्कर आता है, बता दें कैसे लिखते हैं। 14 plus 6, 14 is knowledge and understanding, and this is knowledge and understanding like you have never done before. You go all in. Do we know the kind of detail? कल अंदाजा हुआ था पिछले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में, कि किस लेवल की डिटेल की नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग देनी है। एंड व्हाट अबाउट एनालिसिस? ये एनालिसिस भी पहले नहीं था ऐसा। वट एवर ही इज आस्किंग, अग्री टू हिम, जो वो कह रहा है वो कर दे, बात खत्म, एंड ऑफ स्टोरी। ठीक है? It's not like the 12 marker we used to do in AS. That was way more difficult. We had to make two sides. We had to do advantages, disadvantages, then we had to evaluate. In this question, 20 marker, when you write however and you go to the other side, that means you are on to your evaluation. इसमें था evaluate the use of indifference curve. तो इसको use को कहना था कि is it any good or not, और the kind of detail we had to do वो हमें पता थी। Challenging. With the help of an indifference curve diagram, assess the extent to which a rise in price would affect the demand for a normal good differently from the demand for a given good. All right, let it sink in. पढ़ें जरा आराम से, तसल्ली से। जी, स्टार्टिंग दे दें मुझे। assumptions. अब इसके इस केस में मैंने मार्क्स स्कीम देखी हुई, मुझे पता है वो एज सच assumptions मांग नहीं रहा, लेकिन आपने लिखनी है, हमारा रूल ऑफ थंब है। इनडिफरेंस कर्व के क्वेश्चन में हम assumptions छाप देंगे, सारी assumptions। ऑल राइट, Zara Saqib, what is going on is कि we are done with consumer behavior up till now. Consumer behavior, I guess, is the first two chapters of Unit 7. This is approximately 10% of the syllabus. You can watch videos later on to cover up. This is Unit 7, और इसके अंदर chapter number 7.1 and 7.2 था, I guess. So we are done with these two things. Consumer behavior we are done with. All right, and now we are on to the questions of this chapter. ठीक हो गया? उसके अलावा हमने अभी कुछ नहीं किया हुआ, हमें अभी ये आई गेस थर्ड वीक है, आई गेस। चले जी, सो assumptions of indifference analysis, जल्दी से बता दें assumptions, स्पीड मार दें। assumptions, टू गुड वर्ड, जबरदस्त, दुनिया में सिर्फ दो गुड्स हैं, ये हमारी assumption है। आगे चलें। Rational consumers are, consumers are not stupid, they are smart, they can rank their preferences, they are often of a calculating mind, they always prefer more to less. Perfect knowledge, they have perfect knowledge, everyone knows everything. यहाँ कितने का बिक रहा है, साथ वाली दुकान में कितने का बिक रहा है, राजा बाजार में कितने का बिक रहा है, पेरिस में कितने का बिक रहा है। ठीक है? Transitivity, transitivity, if you prefer good A over good B, you would prefer, and you prefer good B over C, so we assume you would also prefer good A over C. ठीक है? सारी assumptions छाप दी हमने। अब आ जाए सवाल पे, कहानी कहां से शुरू करें? टिपिकल हमारा रटा रटाया है, क्या से शुरू करूं? दिस इज नंबर 1, ठीक है? नंबर 2 कहां से शुरू करूं? बजट लाइंस, बजट लाइंस इन एंड आउट, गो ऑल इन, पूरा समझाएं बजट लाइन होती क्या है, दिखाती क्या है। ठीक है?
मैं तो कहता हूं बना के भी दिखा दें, पैरेलल शिफ्ट बना के दिखा दें कि इनकम बढ़ती है, यू आर नाउ एबल टू बाय मोर ऑफ बोथ गुड्स, इनकम डिक्रीज, नॉमिनल इनकम डिक्रीज, यू आर नाउ एबल टू बाय लेस ऑफ बोथ गुड्स। पिवटल शिफ्ट्स आएंगे, वो दिखाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। नंबर 3, अगली बात कर दें, indifference curve समझा दिया, you define them, you explain the concave shape, sorry my bad, convex shape, वो अभी मैं पीपीसी पढ़ा के आ रहा हूं। Convex shape, that means you're also talking about MRS and you're slightly touching law of diminishing marginal utility. Then where do we go? अब क्या करें, अब क्या करें? Indifference map, indifference map बना के दिखा दें कि the greater, higher the level of, higher the IC from the origin, the higher the level of satisfaction it represents, total utility it represents. फिर नंबर 4, इक्विलिब्रियम बता दिया, इक्विलिब्रियम की सारी टेंजेंट वाली कहानी बता दी, बना के दिखाना चाहते हैं, ठीक है। अगर इफ यू आर स्मार्ट इनफ एंड यू कैन हैंडल इट, सो वी विल बी मेकिंग अ ग्राफ ऑफ सब्स्टिट्यूशन इनकम इफेक्ट। आप वहां उसको रेफर करके अगर चला सकते हैं काम तो चला दें, नहीं कर सकते तो बना दें, मेरा ख्याल से 10 सेकंड भी नहीं लगने। और एक और बात, प्राइस रेशो ओवर MRS AB, लें जी, ये हमारा डिटो एज इट इज छापना है, कोशिश करें पेज, एक पेज, अगर 2 ग्राफ भी हैं तो 1.5 पेज तक चले जाएं, ठीक है। बट डोंट गेट कैरीड अवे, लेकिन गो ऑल इन, वो हमने देख लिया द अमाउंट ऑफ डिटेल ही वांट्स। आ जाए, सवाल क्या पूछ रहे हैं? ये हमारा क्या आ गया, इवैल्यूएशन का कीवर्ड आ गया। A rise in price would affect the demand for a normal good differently from the demand of a given good. हाँ जी, a rise in price, और नीचे फिर इसका क्या मतलब है, डिमांड कर्व भी हम डिराइव कर दें। चलें फिर आ जाए, डिड आई स्टार्ट द रिकॉर्डिंग? आई डिड, ऑल राइट। हाँ जी, चलें चलें चलें, बताते जाएं, कहां से शुरू करें, कहां से शुरू करूं, ग्राफ में क्या करूं? So rise in price है, so the initial budget line goes somewhere here. Now चलते जाएं चलते जाएं, what do I do? I show a PPC, sorry, I show the indifference curve. Next, I draw a demand curve downwards just below it, और rise in price है तो मेक श्योर कि आप यहां लें, नीचे करके इनिशियल लें। एक पॉइंट हमें मिल गया, इसको M कह देते हैं। This is quantity of good A, this is quantity of good A, because this is the demand curve, so this is price of good A and this is quantity of good B. Now what happens, the price of good A rises from P1 to P2, we don't know आगे क्या होगा। अब ऊपर बताएं, ऊपर क्या होगा, pivotal shift inwards, here we go, then we make the imaginary budget line। जागो, सो मत, चलो भाई, here we go। ये क्या है, what is this? This is the substitution effect. Now you find good A to be expensive, you've reduced the consumption of good A, and in return you have increased the consumption of good B, but we never show it because it makes a lot of mess here, ठीक है, तो हम इसको दिखाते नहीं। अब कौन सा गुड है, नॉर्मल गुड है, तो कहां बनाऊं फाइनल आईसी, कहीं भी पीछे बना दे, नीचे ले जाओ इसको, दिस इज फाइनल A3, दिस इज द नेगेटिव इनकम इफेक्ट, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट था, ये इनकम इफेक्ट है, और ये टोटल प्राइस इफेक्ट। इन दोनों को ज्वाइन कर दूं विद अ स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज दिस,
प्राइस बढ़ी, ये गिर गया। इज दिस क्लियर? इज दिस अंडरस्टूड? रिवाइज हो गया? आ जाए जी। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा था? एंड गिफिन गुड, ये ले जी, साथ ही इसके गिफिन गुड हो जाए। Again, same story. Here we go. This is our indifference curve. This is the consumer point where consumer will be consuming stuff. This is A1. नीचे ले जाऊं A1 को. Just to create an analogy, मैं बिल्कुल उसी तरह की price लेता हूं. Done. What happens? The price of good B, the good A rises. What happens? The budget line shifts in a pivotal manner inwards. Make sure कि ये बहुत ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि A1 से आगे आना था. Remember? What do? We draw an imaginary budget line which is to the old IC. What is this? The substitution effect, as always, is the same. अब IC कहां बनाऊं फाइनल? इनकम को क्या हुआ है? गिर गई है. डिमांड फॉर अ गिफन गुडविल वापस गरीब हो गए. 30 रुपए की निहारी वापस खानी पड़ जाएगी. क्या करें? क्या होगा? कहां बनाऊं? दरमियान में? दरमियान में किसका आता है? कहां बनाऊं? फिर यहां बनाऊं? ये तो नॉर्मल है. ये इसको नीचे ले जाऊं. व्हाट इज दिस? क्या हो रहा है? इनइलास्टिक तो है ही है, लेकिन चक्कर क्या है? ये अपवर्ड स्लोपिंग है. ठीक है, सॉरी. इनकम बढ़ी है, प्राइस बढ़ी है, तो इन उल्टा डिमांड गिरने के बजाय उल्टा बढ़ गई है. यू स्टार्टेड फ्रॉम A1 एंड यू एंडेड अप हियर. लेट मी मेक इट मोर क्लियर. समझ आई बात की? डज दिस मेक सेंस? सर लेकिन डिमांड क्यों बढ़ गई गिफिन गुड की, अगर प्राइस गिर गई है, या सॉरी प्राइस बढ़ गई है? चलो, ये किसने पूछा है? सर जयान। जयान भाई, आप थे पहले पिछली क्लासेस में सारी? सर था तो सही। गिफिन गुड याद नहीं है? गिफिन गुड डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ डिमांड. इट फेसेस एन अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व. सर लेकिन वो आपने जिस तरह एग्जाम्पल दी थी गिफिन गुड की, गधे की गोश्त वाली, सर तो अगर प्राइस बढ़ गई है तो सर लोग क्यों ले रहे हैं फिर वो? यार, प्राइस बढ़ने का इंक्रीज जो है ना, इसको इसीलिए फिर वो गधे की एग्जांपल इतनी कोई अच्छी नहीं है. इसीलिए आप स्टेपल फूड को लें. ठीक है, स्टेपल फूड बढ़ता है. पीपल थिंक इसकी इट्स प्राइस इज सीन एज एन इंडिकेटर ऑफ इट्स क्वालिटी. पीपल थिंक कि अब ये बेहतर है. ठीक है, पीपल थिंक कि अब ये बेहतर हो गया, प्राइस बढ़ रही है, तो वो उसको लेना शुरू कर देते, बिकॉज बिकॉज इट इज रिलेटिवली स्टिल चीपर. तो उसकी प्राइस बढ़ेगी. अब वही गधे की निहारी मैं आपको दे दूं 500 रुपए की, खा लेंगे? 500 रुपए की निहारी, ये थोड़ी लिखा है कि गधे की निहारी. 500 रुपए की निहारी खानी, खा लेंगे ना? आई बात समझ में? आप उस दिन 30 रुपए की खाने के लिए तैयार थे पहले. डी बात समझ आई? तो इफ इट्स प्राइस इंक्रीजेस, नाउ यू आर सीइंग इट एज अ प्रोडक्ट विद अ बेटर क्वालिटी, सो यू बाय मोर ऑफ इट. ये सारा काम हमने कर दिया, तो हमारा क्या हो गया? We are done with 14 marks, and obviously we explain substitution effect, we explain income effect, we explain price effect. ठीक है, ऑल राइट पीपल. जो नए आए हैं, आई नो के सर के ऊपर से गुजरा होगा, डोंट वरी, हम इसको बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, बहुत दफा बना भी चुके हैं. अब आ जाए, इसकी इवैल्यूएशन थोड़ी सी डिफरेंट है. जरा पढ़े आंखें खोल के, क्या क्या रहा है? किस हद तक assess the extent to which a rise in the price would affect the demand for a normal good differently from the demand for a given good. एक डिफरेंस तो बहुत ऑब्वियस है. क्या? उसकी नॉर्मल गुड की प्राइस जब इंक्रीज करती है, तो ओवरऑल उसकी क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स.
गिफिन गुड की जब प्राइस इंक्रीज करती है, इसकी क्वांटिटी डिमांडेड गिरने के बजाय उल्टा इसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज कर देगी. बट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज वी आर नॉट क्लियर ऑन, कि इलास्टिक है इनइलास्टिक है. ठीक है, इलास्टिक इनइलास्टिक पे वी आर नॉट क्लियर, इलास्टिसिटी पे. ठीक है, इसकी इलास्टिसिटी पे कमेंट नहीं हो सकता टेक्निकली, इसकी भी इलास्टिसिटी इनकम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से नहीं निकल सकती. वो ये पूछ रहे कि किस हद तक टू अराइज इन प्राइस वुड अफेक्ट द डिमांड. एक प्राइस बढ़ती है वो किस हद तक, मतलब चेंज मैग्नीट्यूड की एक तरह से बात करें, ज्यादा चेंज कहां आ रहा है, तो ज्यादा चेंज की बात हम कर ही नहीं सकते. ठीक है, क्योंकि वी डोंट नो एग्जैक्टली द इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी का हल्का फुल्का आइडिया होता है हमें, लेकिन हमें मानूर पता नहीं चलता कि कितनी इंक्रीज आएगा. इसमें भी हम इंक्रीज के मैग्नीट्यूड पे बात नहीं कर सकते गिफिन के केस में, इसमें भी हम एज सच उसके मैग्नीट्यूड पे बात नहीं कर सकते. हाँ, वो सिनेरियो हम बता देंगे. ठीक है ना, लेकिन इन डिफरेंस एनालिसिस से हमें ये पता नहीं चल रहा, एंड पे हम कंक्लूड कर देंगे. हाँ, फिर वो इलास्टिसिटी में फर्क आता, दोनों की होती सेम डायरेक्शन सेम होती, लेकिन इलास्टिसिटी में फर्क आता. ठीक है, अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इट इज नॉट टेलिंग अस व्हाट दी assumptions, बट हमारा एक थंब रूल ऑफ थंब बन चुका है, हमने assumptions देनी है. बिकॉज हाउ वुड यू नो कि इस क्वेश्चन में देनी है और उस क्वेश्चन में नहीं देनी. ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर assumptions के साथ चलना है, क्योंकि गोरे का अपना कोई दीन ईमान नहीं है. ठीक है, diagram showing in different curves, budget lines, price lines, changes in budget lines representing a rise in price, diagrams of resultant path of consumption showing differences in substitution and income effects for normal and given good, comment on changes in overall demand based on changes in income and substitution effects. Can we handle this? Comment on the extent of changes would vary depending on the price elasticity demand. It would also depend on the slope of the indifference curve and the marginal rate of substitution. ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कितना चेंज आएगा, ये डिपेंड किस पे करेगा, MRS पे, कि हाउ मेनी गुड्स वी आर विलिंग टू फॉरगो अगेंस्ट दी अदर गुड. ये बात समझ आई है सबको? ये जरा टेक्निकल बात है. वो ये कह रहे हैं कि स्लोप ऑफ MRS पे डिपेंड करेगा कि दूसरे गुड बी के साथ रिलेशनशिप कैसा है इस गुड का. अगर तो वो बहुत ज्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं फिर चेंज ज्यादा आएगा, अगर वो सब्स्टिट्यूट्स नहीं है तो फिर चेंज इतना ज्यादा नहीं आएगा. डू वी अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, इज दिस क्लियर? अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सिर्फ दो ही एग्जांपल्स हैं 2023 ऑनवर्ड्स, जब से 20 मार्कर इंट्रोड्यूस हुआ. बाय द वे, डू यू नो इससे पहले क्या होता था? इससे पहले 2023 से पहले 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता था, या फिर क्या होता था, 12-13 की बाइफर्केशन से पार्ट ए और पार्ट बी आता था. डू वी गेट इट? चलें जी. अच्छा, दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन दैट वी कैन अटेम्प्ट. Evaluate whether marginal utility theory can fully explain the link between the changing price of a good and quantity demanded of the good. इस क्वेश्चन में इंडिफरेंस कर्व का चक्कर ही कोई नहीं. कहां से शुरू करूं? assumptions of what? Assumptions of marginal utility theory. Assumptions of marginal utility theory वही rationality, sovereignty. ठीक है, उसके बाद और क्या है कि वो कैलकुलेट कर सकता है मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. फिर आप यूटिलिटी समझाएंगे, टोटल यूटिलिटी समझाएंगे, मार्जिनल यूटिलिटी समझाएंगे, और मैं तो कहता हूं कि आप ये बना दिया जाए. क्या ख्याल है? बना दें ये टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी का सीन समझा दें. फिर मैं कहता हूं आप हल्का सा वन गुड मॉडल को टच कर ले. ज्यादा वन गुड मॉडल नहीं करना, क्योंकि मेन क्या है, इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल, P इज इक्वल्स टू VMU वाली बात समझा दें, एंड देन वी मूव ऑन टू इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल.
इसके अंदर भाइयों और बहनों ये क्वेश्चन आपने सिर्फ तब अटेम्प्ट करना है जब आपको इसका रट्टा लगा हो डेटा का, या यू आर केपेबल एनफ टू हैंडल इट। रिमेंबर दिस इक्विमार्जिनल प्रिंसिपल, यू हैव टू एक्सप्लेन इक्विमार्जिनल प्रिंसिपल, इधर इक्विलिब्रियम क्यों होता है, एंड देन यू पुट इन वैल्यूज। फिर आप वैल्यूज डालेंगे, ठीक है, रिमेंबर हमने ली थी, और फिर हमने कहा था अगर प्राइस चेंज होती है, इसकी प्राइस बढ़ जाती है, तो क्या हो जाएगी 30, this won't be in equilibrium any longer, and then what will happen, क्वांटिटी लेट्स सपोज इसकी अभी ले रहे हैं हम 10, तो आप ये कर देंगे क्या, द प्राइस ऑफ 20, द क्वांटिटी इज $10, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस जी, क्या होगा, द प्राइस फर्दर राइजेस टू 30, बताएं क्या होगा, द कंज्यूमर विल, ये अब इक्विलिब्रियम में नहीं है, जब जिसकी प्राइस बढ़ गई उसकी कंजम्पशन को कंज्यूमर कम करना शुरू करेगा, इसकी कंजम्पशन को कंज्यूमर बढ़ाना शुरू करेगा। व्हेन ही डज दैट व्हाट हैपेंस टू मार्जिनल यूटिलिटी, कुछ याद भी है, नहीं सब भूल गए, मार्जिनल यूटिलिटी इसकी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, तो ये तब तक होता रहेगा जब तक वापस इक्विलिब्रियम पर नहीं जाते। देन यू डिराइव अ डिमांड कर्व। एंड पे क्रिटिक, it depends on, there are lots of limitations of this theory. Definitions of marginal and total utility, explanation of total utility, law of diminishing marginal utility, price through equimargin principle, and illustration with the effect of on a diagram. Demand curve versus price, which can apply to both normal, inferior, give non-given goods, but the theory does not distinguish between. Marginal utility theory इन दोनों में distinguish नहीं कर सकती कि magnitude of change क्या आएगा, और ये इसकी क्या है, सारी assumptions। कंज्यूमर बिहेवियर में इनडिफरेंस कर्व के ऊपर क्वेश्चन आता है, यू मस्ट अटेम्प्ट इट, और मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी का आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप करें अनटिल अनलेस आपको रट्टा हुआ हो के करना क्या है। इज दिस क्लियर? चलें जी, नथिंग इज क्लियर। जो शक्लें आपकी ना, वो सबकी मुझे ऐसे लग रहा है कि ऊपर से गुजर रहे हैं, यही तो मसला है आप लोगों का, सब जीरो करके आप लोग आ जाते हैं। चलें जी, सिलेक्ट करें कौन सा क्वेश्चन लिखें। आई नो इट्स बोरिंग, आई नो इट्स वेरी टीडियस, कल करेंगे, परसों ना करें एक ही दफा। चलें, बताएं भाई, सबसे आखिरी वाला हम वैसे ही अटेम्प्ट नहीं करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी नहीं, पहले इंडिफरेंस वाला जरूरी है अटेम्प्ट करना। वन कर लें, वन कर लें। चलें जी, तैयारी पकड़ें। अगर हम इस तरह करते रहे हर क्वेश्चन पूरा पूरा, तो बस फिर होगी तैयारी, फिर सिर्फ कंज्यूमर ही तैयार होगा मार्च तक। चलिए जी, आई नो दैट इज अ बोरिंग थिंग, लेकिन आई वांट एवरीवन टू राइट द आंसर, इससे यू लर्न अ लॉट हाउ टू राइट दैट आंसर, ठीक है। देन अगेन मैं थोड़ा सा जज्बाती हो जाता हूं, लेकिन क्या करें। अच्छा एक सेकेंड, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मिनट, इसको थोड़ा सा, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं इसको जरा कॉपी कर लूं, और फिर हम शुरू कर रहे हैं। रेफरेंस इसका लिख लें, और इसका हमारे पास ईसीआर या एग्जामिनर जो आंसर है वो भी नहीं है, सो वील राइट इट इन फुल डिटेल।
बस एक सेकंड मुझे दीजिए। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। हियर वी गो। शुरू करें, लिखना शुरू करेंगे मेरे साथ साथ। I'll end the class, बल्कि I'll stop, I'll end the class here और उसके साथ मैं उसको अटैच कर दूंगा इसका आंसर जब मैं कर लूंगा पूरा। All right जी, we were unable to upload, we weren't unable, we actually deliberately didn't upload the videos for a few days, and the reason was we were trying to write the answer for a question in due detail, और हमने 2 दिन लगा के इस आंसर को लिखा है। This is the question. If you're looking at it, I want you to take screenshots, all right, so that you can use it further. So the question was, evaluate the use of indifference curve analysis to derive the demand curve for a normal good and the demand curve for an inferior good. So we started off, एक typical answer है हमारा हर indifference question analysis के question पे हमने वही करना है शुरू में। थोड़ा सा ये जरा ज्यादा है, हम थोड़ा जज्बाती हो गए थे लिखते लिखते, लेकिन ये सारी आ गई हमारी assumptions. So these are the assumptions, all right. फिर हम आगे budget lines को explain कर रहे हैं. So we explained the budget lines. We also did draw the budget lines showing the outward and inward shift when incomes change. Then we went on to explain the indifference curves, और हमने MRS समझाया, indifference को कर्व की convex shape समझाई MRS के थ्रू, और फिर हमने indifference मैप भी बना के दिखाया उसको। ठीक है, people looking at this on the YouTube can take screenshots. Then we went on to explain what the equilibrium, यहां पे हम equilibrium explain कर रहे हैं, वो हमने बना के नहीं दिखाया क्योंकि हमने आगे बनाना ही था, तो हमने उसको वहां पे रेफर कर दिया। This was the equilibrium, and then we made what, the graph of a normal good with substitution, income effect, price effect, and derivation of the demand curve. ठीक है, and then we explained it. ये सारी उसकी एक्सप्लेनेशन है। ये थोड़ी सी जरा ज्यादा हो गई थी। कोशिश हम इसकी करेंगे कि अगर किसी ने लिखा है तो इसका पीडीएफ आई विल ट्राई टू अपलोड इट इन द कमेंट्स, और वेयर डू यू एक्चुअली अपलोड इट? कमेंट्स में अपलोड हो जाता है ना? नहीं, गूगल ड्राइव पे उसका लिंक शेयर कर देंगे फिर कमेंट्स पे। ऑल राइट, आई डू दैट। इन एनी केस आई एम नॉट श्योर कि हम वो करेंगे शेयर, तो आप लोग इसकी वो ले लीजिएगा। तो ये हमने सारा एक्सप्लेन किया स्क्रीनशॉट्स, और फिर आ गया इंफीरियर गुड का केस, हमने सारा ये समझा दिया, दिखा दिया, ये इसकी एक्सप्लेनेशन आ गई। थोड़े से हम ज्यादा जज्बाती हो गए, क्वेश्चन जरा सा लंबा हो गया, लेकिन जज्बात हमेशा अच्छे होते हैं। ठीक है, इफ यू रिप्रोड्यूस इट यू विल ऑब्वियसली टोन इट डाउन अ लिटिल बिट, ठीक है, क्योंकि यू हैव टू कंप्लीट इट इन 40 मिनट्स। और ये यहां से हमारी इवैल्यूएशन शुरू हुई, ये हमने सारी assumptions के ऊपर क्रिटिक की है। These are the limitations. और लिमिटेशंस भी हमने अच्छी खासी लिखनी है भाई। टोटल कितना पेज बना है? 6.5 विद दीज टू ग्राफ्स, जो एक दूसरे के, एक ग्राफ तो उसका निकाल दें। 5.5, 5.5 भी थोड़ा जरा ज्यादा है क्योंकि आपने इसको रिप्रोड्यूस करना है, लेकिन आप ऑब्वियसली इसको पढ़ के जब लिखेंगे, हम तो 8.5 ना करके, आपकी राइटिंग बड़ी है, तो हम इसको टोन डाउन भी ऑब्वियसली करेंगे। ये आगे assumption, जरा assumptions चेक कर लेते हैं, कुछ छोड़ तो नहीं दिया। रैशनैलिटी का जिक्र हमने किया था, दैट